Hello learners, in today's video you are going to study Unit 5, Section 3 of New Pathways Class 8, and it's titled The Choice, written by Robert Morgan. And Robert Morgan, he was an American poet. And today's poem is, you can say it's a sort of a warning to us. What we are doing, the activities that we are carrying out for the sake of human development, are we really progressing? Nowadays we talk about pollution, we talk about global warming, about the extinction of a species, about the climate change and all. This is all because of the environmental degradation, and this environmental degradation is the effect of the cause of our human activities. No? So let's read this poem and understand the gravity of the problem. Okay, so let's begin. It says, they were landing and the great thrust pressed like magnetism on their bodies. Now they means who? They means two or more than two. And they were landing. Landing means they are off the land, and so most probably they might be in a it could be airplane or anything, but let us find out actually what it was. And the great thrust means the great force which helps any craft to move ahead. It pressed like magnetism on their bodies. No, it made their bodies to attract to each other. Right? And so the great ship. Now here we come to know about that it was not a plane. It was a big craft. It was a spacecraft. It hovered. Hovered means it remained in the air for some time. Then slowly it dropped on the meadow grass. Now we find here, it speaks about greenery, meadow grass, where the cattle graze. So they have come to a certain place where there is meadow grass. Now, startling, the captain stared at the green landscape. Now what we see here is one character now, one creature you can see, that is Staglin, and he is the captain of that craft. And what he does, he is staring, he is gazing at the green landscape. It says further, between two hills, a deserted city, crumbling and overgrown, patterned the scanning screen. So Stargling, he is in his spaceship. They haven't got down from their spaceship, okay, or the spacecraft. And he is not the only fellow, because it's written they, then somebody might also be there. And so here now we read about the surrounding. Between two hills, a deserted city, abandoned city. Deserted means ऐसे कोई city जिसे छोड़ दिया गया हो. इसका अगर हिंदी वर्ड बोलेंगे तो वीरान है ना, एक वीरान सिटी, कोई नहीं रहता है. और अगर हम इमेज में भी देखें तो आपको दिखेगा कि वहां कोई भी नहीं है ना. And so here you can see in the image, here further we see, it says like crumbling. Crumbling means here like breaking and falling apart into small fragments. So the buildings are not in good situations there. And overgrown. No, overgrown means there is a dense covering of plants in a wild way. You can just see in the images. No, and these all pattern the scanning screen. So Stargling, he is watching on his screen, right?
The screen is scanning the whole place, and so the scanning screen is patterned with this. This is all visible on the screen. The dials on the blue screen indicated no human life present. Right? So it is now where they have found that there is no human, means no life. Right? No human life there. Not a single man or a woman. Not even animals. No human life. Only vegetation and those crumbling buildings. Now here we read further. Sun Quan, the celestial geologist, smiled over his captain's shoulder. Now we come to here now. Sun Quan, who was the celestial geologist. Geologist is they are usually the scientists, those who study the matter that constitutes the earth. So he was a celestial geologist. Whatever is in the celestial, he means outer space, not the geologist on earth, okay? And so he smiled over his captain's shoulder. Now here, smiled over his captain's shoulder means he just, though he looked so, he felt maybe a little anxious and all about the thing, and he just looked at his captain. And then the captain, struggling, he said, "You were right." You were right means Sun Quan has told something to the captain prior to this. सन कॉन ने पहले ही कैप्टन को कुछ बताया है इस जगह के बारे में, और वो ये यहाँ पर उन्होंने विजिट किया है एक प्लान के तहत. ओके, इट्स नॉट दैट एक्सीडेंटली वो वहां पहुंच गए, ऐसा नहीं है. वो कुछ फाइंड आउट करने आए हैं यहाँ पर, और सब कुछ देख करके स्टार्गलिंग बोलता है, तुम सही थे. They must have been very aggressive people. और फिर स्टार्गलिन एक ओपिनियन पास करता है कि जो यहाँ के लोग थे, अर्थ पे जो लोग रहते थे, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट अस, कि जो लोग अर्थ पर थे वे बहुत एग्रेसिव पीपल रहे होंगे. एग्रेसिव मीन्स वेरी वायलेंट पीपल. अब ऐसा क्यों है कि वो ऐसा कहता है कि हम लोग वायलेंट थे? No, the reason is, and there he says, what was your main source of information? स्टार्गलिन ये सब चीजें अपने सेलेस्टियल जियोलॉजिस्ट जो है सन कॉन, उससे पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे, तुम्हारे जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन मिला है इनके बारे में, वो कैसे तुम्हें मालूम हुआ, है ना? स्टार्गलिन मीन्स सन कॉन ने कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका है हमारे जो कैप्टन है, स्पेशली कैप्टन स्टार्गलिन को सन कॉन ने बताया है. तो स्टार्गलिन चीजों को देख करके, वहां के हालात को देख करके कहता है कि वे जरूर बहुत ही आक्रामक लोग रहे होंगे. जो अर्थ को इनहेबिट करते थे वे लोग आक्रामक लोग रहे होंगे. फिर वो जानकारी के सोर्स के बारे में पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम था. सो यहाँ वो कहता है, नाउ सन कॉन इज गोइंग टू टेल how he came to know about this earth. Okay, so अब वो बताता है, रीजन पढ़ते हैं. The great meteorite which broke from earth in 2048 AD. no, अभी तो हम 2020 में हैं, राइट? तो ये बोल रहा है कि the great meteorite which broke from earth. अब देखिए, अब meteorite, what is meteorite? It's given there, children. It's a piece of rock from outer space that has fallen on earth. पर यहाँ पर वो ये जो meteorite है ये अर्थ पर फॉल नहीं हुआ, अर्थ से निकला है. ठीक है, कोई सा भी एक्शन रहा होगा उसके कारण अर्थ से ये टुकड़ा मीन्स आउटर स्पेस में आ गया. यूजुअली वी कैन बी हिट बाय meteorites, और ऐसा हुआ भी है.
पर यहाँ से अर्थ का टुकड़ा बाहर गया आउटर स्पेस में. ओके, सो दिस द ग्रेट मीटोराइट विच ब्रोक फ्रॉम अर्थ इन 2048. जब सनकॉन इन लोगों को वो मीटोराइट मिला तो वे कहाँ ले गए? वी टुक इट टू स्टेशन जेड एंड एग्जामिन्ड इट. उस अर्थ के टुकड़े को लेकर के वे अपने स्टेशन जेड पे, जो उनके स्टेशन का नाम होगा, उस वहां लेकर के उसको उन्होंने एग्जामिन किया. एंड इट टोल्ड अस एवरीथिंग. नाउ ये इट टोल्ड अस एवरीथिंग, बच्चों समझिए यहाँ पर मीटियोराइट इज अ रॉक. तो एक रॉक तो कुछ बताएगा नहीं, है ना. अब ये रॉक अपनी कहानी कैसे बताता है? तो हम यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज्ड हुआ है, वो है पर्सोनिफिकेशन. रॉक में कोई लाइफ नहीं है, पर वो कह रहा है, इट मीन्स कि उसमें लाइफ है. पर्सोनिफाइड रॉक इज पर्सोनिफाइड. ठीक है, इसलिए हम इसमें लिखा है इट टोल्ड अस एवरीथिंग. इट टोल्ड अस एवरीथिंग मीन्स द रॉक टोल्ड द होल स्टोरी ऑफ इट. द रॉक, the piece of rock that fell from the earth, that fell apart from the earth, told everything. And what it told? What? Asked Stargling. क्या क्या मालूम पड़ा आपको उस अर्थ के टुकड़े से? सो सन कौन कहता है? They were allowed to choose between good and evil. और फिर डॉट डॉट है मिस, और कुछ बोल सकते हैं यहाँ पर हम. वो डॉट डॉट जो कंटिन्यूएशन में है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि दे वर अलाउड टू चूज बिटवीन गुड एंड ईविल एंड दे चोज ईविल. आप मेरी बात समझ रहे हैं? इट्स रिटर्न दे वर अलाउड मीन्स उन लोगों के पास जो भी इनहेबिटेंट्स थे अर्थ के, उनके पास चॉइस थी. राइट, गुड और इविल, अच्छे और बुरे के बीच में चॉइस थी, और उन्होंने इविल को चुना, और इसलिए अर्थ की ये हालत है. और ये सुनकर स्टगलिन बोलता है, फूल्स. मटर्ड, इट्स रिटर्न मटर्ड. स्टगलिन ही मटर्ड, वो धीरे शब्दों में कहता है फूल्स. आप देखिए कि ये फूल्स हमें कह रहे हैं, बेवकूफ कह रहे हैं हमको, है ना, कि हम लोग बेवकूफ थे जो हमने चुना इविल को, हमने गलत को चुना. सो स्टूडेंट्स, अगर हम आज की कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अपने प्लैनेट को डिग्रेड कर रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव चॉपिंग डाउन द फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन के कारण, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज है हमारे, चाहे लैंड रिसोर्सेज है, वी आर ब्रिंगिंग अंडर कंस्ट्रक्शन. सब जगह हम बिल्डिंग्स खड़े कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं हम लोग हमारे नीड्स के लिए. वी आर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज and there are certain industries जो बहुत हार्मफुल गैस एमिट करते हैं, है ना. ये सब हम एडवांसमेंट बोलेंगे या डेवलपमेंट के नाम पर सब चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. बड़े बड़े ये स्काई क्रैपर्स बन रहे हैं. आप देखेंगे कि पूरी जो लैंड है सब कंस्ट्रक्शन के लिए ही जा रही है. तो हम पूरे हम एग्रीकल्चर के लिए भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं. सो इन अ वे वी आर क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस. हमारा जो इकोसिस्टम है उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. कुछ समय आएगा जब हमारे बहुत सारे हमारे स्पीसीज जो है, एनिमल स्पीसीज बोलिए या प्लांट स्पीसीज हैं, वो भी एक्सटिंक्शन के पर आ चुकी है ना, यू कैन से. और कोई नई बात नहीं होगी, या यदि एक समय आएगा जब देयर विल बी अ मास एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हमारा भी खात्मा हो जाएगा. आफ्टर ऑल हम जो लोग हैं, हम लोग भी एक जीव हैं. वी आर ऑल्सो बीइंग, यू नो. सो सर्टनली वी विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू सर्वाइव. कुछ ना कुछ हम लोग कर ही रहे हैं.
सो वी आर नोइंग ऑल दिस, हम सब ये सब जानते, फिर भी वी आर कंटिन्यूइंग विथ इट, हम उसको कंटिन्यूएशन में रखे हुए हैं। हम लोग कुछ पॉलिसीज बन जाती है, कुछ डिसाइड कर मीन्स प्लान्स होते हैं, पर वो एक्चुअली में होते हैं कि हम लोग उस चीज को ले रहे हैं कि हमारे व्हीकल्स देखिए दिन ब दिन रोड पर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। सो कितना वो गैस एमिट करते हैं, कितना स्मोक एमिट करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट उसी से खराब हो रहा है, हम लोग बीमार हो रहे हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। तो ये सब तो अभी हमें बहुत ही ध्यान से चूज करना है, वन अदरवाइज स्टागलिन जी ने जो हमारे बारे में कहा है कि फूल्स, और वो सही कहा कि जब लोगों के पास चॉइस था रहने को ना, जब चॉइस था कि कुछ कर सकते थे, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सो वी हैव टू थिंक and not just think, children, it is the time when we need to act. Okay, I hope you liked the explanation, and if you liked it, just click the like button and subscribe to my channel. Thank you.